ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ। ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਇ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ। ਭੁਖਿਆ ਭੁਖ ਨ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆ ਭਾਰ। ਸਹਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲਖ ਹੋਹਿ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨ ਚੱਲੈ ਨਾਲ। ਕੇਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕੇਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ। ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀਅ ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ। ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਾਈਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਆ ਹੈ। ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹਿ ਨ ਕੋਏ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੈ ਕਿਸੈ ਤਾਣ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਨੀਸਾਨ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆ ਚਾਰ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵੀਚਾਰ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ ਖੇਹ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਜੀਅ ਲੈ ਫਿਰਦੇ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰ। ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨ ਆਵੈ ਟੋਟ। ਕਾਥੇ ਕਾਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ। ਦੇਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ। ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ। ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹ। ਨਾਨਕ ਵਿਖਸੈ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ। ਆਖੈ ਮੰਗੈ ਦੇਹ ਦੇਹ ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ। ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਐ ਜਿਤ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰ। ਮੁਹਾਉ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਐ ਜਿਤ ਸੁਣ ਤਰੇ ਪਿਆਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕੱਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦਵਾਰ। ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਜਾਣੀਐ ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰ। ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ। ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ। ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰਖੀਐ ਭਾਉ। ਦੁਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ। ਗੁਰ ਈਸਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ। ਜੇ ਹਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਾਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਥਨੋ ਨ ਜਾਈ। ਗੁਰਾ ਇਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇਕ ਦਾਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ। ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਾ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾ ਵਿਣ ਭਾਣੇ ਕੇ ਨਹਾਏ ਕਰੀ। ਜੇਤੀ ਸੇਠੋ ਪਾਈ ਵੇਖਾ ਵਿਣ ਕਰਮਾ ਕੇ ਮਿਲੈ ਲਈ। ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇਕ ਦਾਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ। ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ। ਨਵਾਂ ਖੰਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਚਲੈ ਸਭ ਕੋਏ। ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਏ ਕੈ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੇ। ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨ ਆਵਈ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੈ ਕੇ। ਕੀਟਾ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ ਦੋਸੀ ਦੋਸ ਧਰੇ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣੇ ਗੁਣ ਕਰੇ। ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਗੁਣ ਦੇ ਤੇਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਝਈ। ਜੇ ਤਿਸ ਗੁਣ ਕੋਏ ਕਰੇ। ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ। ਸੁਣਿਆ ਧਰਤ ਤਵਲ ਆਕਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਦੀਪ ਲੋ ਪਾਤਾਲ। ਸੁਣਿਆ ਪੋਹਿ ਨ ਸਕੈ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਈਸ਼ਵਰ ਬਰਮਾ ਇੰਦੋ। ਸੁਣਿਆ ਮੁਖ ਸਾਲਾਹਣ ਮੰਦੋ। ਸੁਣਿਆ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਨ ਭੇਦ। ਸੁਣਿਆ ਸਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ। ਸੁਣਿਆ 68 ਕਾ ਇਸਨਾਨ। ਸੁਣਿਆ ਪੜ ਪੜ ਭਾਵੈ ਮਾਨ। ਸੁਣਿਆ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਸਰਾ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾਹ। ਸੁਣਿਆ ਸੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸੁਣਿਆ ਅੰਧੇ ਪਾਵੈ ਰਾਹ। ਸੁਣਿਆ ਹਾਥ ਹੋਵੈ ਅਸਗਾਹ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਏ। ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਪਿਛੈ ਪਛਤਾਏ। ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਲਿਖਣ ਹਾਰ। ਮੰਨੇ ਕਾ ਬਹਿ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਸੁਰਤ ਹੋਵੈ ਮਨ ਬੁੱਧੇ। ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਭੁਵਨ ਕੀ ਸੁਧੇ। ਮੰਨੈ ਮੋਹ ਚੋਟਾ ਨ ਖਾਏ। ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੈ ਸਾਥ ਨ ਜਾਏ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨ ਪਾਏ। ਮੰਨੈ ਪਥਿਓਂ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ। ਮੰਨੈ ਮਗ ਨ ਚੱਲੈ ਪੰਥ। ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਸੰਬੰਧ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਪਾਵੈ ਮੋਖ ਦਵਾਰ। ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰ। ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ। ਮੰਨੈ ਨਾਨਕ ਭਵੈ ਨ ਭਿਖ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣਾ ਮਨ ਕੋਏ। ਪੰਜ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਪੰਚੇ ਭਾਵੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ। ਪੰਚੇ ਸੋਹੈ ਦਰ ਰਾਜਾਨ। ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ। ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ। ਕਰਤੇ ਕਹਿ ਕਰਨੈ ਨਾਹੀ ਸੁਮਾਰ। ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ। ਸੰਤੋਖ ਤਾਪ ਰਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ। ਜੇ ਕੋ ਬੁੱਝੈ ਹੋਵੈ ਸਚਿਆਰ। ਧਵਲੇ ਉੱਪਰ ਕੇਤਾ ਭਾਰ। ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਫਿਰੈ ਹੋਰ ਹੋਰ। ਤਿਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਲੈ ਕਵਣ ਜੋਰ। ਜੀ ਜਾਤ ਰੰਗਾ ਕੇ ਨਾਵ। ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ ਬੜੀ ਕਲਾਮ। ਇਹੋ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣੈ ਕੋਏ। ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਕੇਤਾ ਹੋਏ। ਕੇਤਾ ਤਾਣ ਸਵਾਲਿਆ ਰੂਪ। ਕੇਤੀ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਕੌਣ ਕੂਤ। ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ। ਤਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲਖ ਦਰਿਆਓ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ। ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ।
ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਉ, ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ ਅਸੰਖ ਤਪ ਤਾਉ, ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ, ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹਿ ਉਦਾਸ। ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ, ਅਸੰਖ ਸੂਰ ਮੋਹ ਭਗਸਾਰ। ਅਸੰਖ ਮੌਨ ਲਿਵ ਲਾਇ ਤਾਰ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ। ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਮੂਰਖੰਦ ਘੋਰ, ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ, ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜੋਰ। ਅਸੰਖ ਗਲ ਵੱਢ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਹੇ। ਅਸੰਖ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਫਿਰਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਮਲੇਛ ਮਲ ਭਖ ਖਾਹੇ। ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਕਰੈ ਭਾਰ, ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ। ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵੈ ਏਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਨਾਵ ਅਸੰਖ ਤਾਵ, ਅਗੰਮ ਅਗੰਮ ਅਸੰਖ ਲੋ, ਅਸੰਖ ਕਹਿ ਸਿਰ ਭਾਰ ਹੋਏ। ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਅਖਰੀ ਸਾਲਾਹ, ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾਹ। ਅਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ, ਅਖਰਾ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਬਖਾਣ। ਜਿਨੇ ਲਿਖੇ ਤਿਸ ਸਿਰ ਨਾਹੇ, ਜੇ ਫਰਮਾਏ ਤਿਵ ਤੇ ਪਾਹੇ। ਜੇਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇਤਾ ਨਾਉ, ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਭਰੀਐ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇਹ, ਪਾਣੀ ਧੋਤੈ ਉਤਰੋ ਸੋਖੇ। ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ, ਦੇ ਸਾਬੂਣ ਲਈਐ ਓਹ ਧੋਏ। ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕਾ ਸੰਗ, ਓਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ। ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹਿ, ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਹੋ। ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੋ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਭਉ ਜਾਹੋ। ਤੀਰਥ ਤਪ ਦਇਆ ਦਤ ਦਾਨੋ, ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਨੋ। ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਹਾਉ। ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਬਿਨ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਵਸਤ ਆਥ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਓ, ਸਤ ਸੁਹਾਣ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ। ਕਵਣ ਸੋ ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਕਵਣ, ਕਵਣ ਥਿਤ ਕਵਣ ਵਾਰੋ। ਕਵਣ ਸੇ ਰੁੱਤੀ ਮਾਹੋ, ਕਵਣ ਜਿਤ ਹੋਵਾ ਆਕਾਰੋ। ਵੇਲ ਨਾ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ, ਜੇ ਹੋਵੈ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ। ਵਕਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆਂ, ਜੇ ਲਿਖਨ ਲੇਖ ਕੁਰਾਨ। ਥਿਤ ਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੈ, ਰੁੱਤ ਮਾਹੁ ਨਾ ਕੋਈ। ਜਾ ਕਰਤਾ ਸੇਠੀ ਕਉ ਸਾਜੇ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ। ਕਿਵ ਕਰ ਆਖਾਂ ਕਿਵ ਸਾਲਾਹੀ, ਕਿਉ ਵਰਨੀ ਕਿਵ ਜਾਣਾ। ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ, ਇਕ ਦੂ ਇਕ ਸਿਆਣਾ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਾਈ, ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹੋਵੈ। ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪਉ ਜਾਣੈ, ਅੱਗਾ ਗਿਆ ਨ ਸੋਹੈ। ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲਖ, ਆਗਾਸ ਆਗਾਸ। ਓੜ ਕੋੜ ਭਾਲ ਥਕੇ, ਵੇਦ ਕਹਿਨ ਇਕ ਬਾਤ। ਸਹਸ 18 ਕਹਿਨ ਕਤੇਬਾ, ਅਸਲੂ ਇਕ ਧਾਤ। ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ, ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਐ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪ। ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹੇ, ਏਤੀ ਸੁਰਤ ਨ ਪਾਈਆ। ਨਦੀਆਂ ਅਤੈ ਬਾਹ, ਪਵੈ ਸਮੁੰਦ ਨ ਜਾਣੀਆ ਹੈ। ਸਮੁੰਦ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨ, ਗਿਰਹਾ ਸੇਤੀ ਮਾਲ ਧਨ। ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨ ਹੋਵਨੀ, ਜੇ ਤਿਸ ਮਨੋ ਨ ਵਿਸਰੈ। ਅੰਤ ਨ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨ ਕਰਨੈ ਦੇਣ ਨ ਅੰਤ। ਅੰਤ ਨ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਨ ਮੰਤ। ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ, ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੇਤੇ ਬਿਲ ਲਾਹੇ, ਤਾਕੇ ਅੰਤ ਨ ਪਾਏ ਜਾਹੇ। ਇਹੋ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਐ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਉ, ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਉ। ਏ ਵਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੈ ਕੋਏ, ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕਉ ਜਾਣੈ ਸੋਏ। ਜੇ ਵਡ ਆਪ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਆਪੇ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤੇ। ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤੇਲ ਨਾ ਤਮਾਏ। ਕੇਤੇ ਮੰਗੈ ਜੋਗ ਅਪਾਰ, ਕੇਤੇ ਅਗਣਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੋ। ਕੇਤੇ ਖਪ ਟੁੱਟੈ ਬੇਕਾਰ, ਕੇਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰ ਪਾਹੇ। ਕੇਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ, ਕੇਤਿਆ ਦੁਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ। ਇਹ ਭੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ, ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੈ ਹੋਏ। ਹੋਰ ਆਖ ਨ ਸਕੈ ਕੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਖਾਏ ਕੋ ਆਖਣ ਪਾਏ। ਉਹ ਜਾਣੈ ਜੇਤੀਆਂ ਮੋਹਿ ਖਾਏ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਦੇ। ਆਖੈ ਸੇ ਪੇ ਕੇਈ ਕੇ, ਜਿਸ ਨੋ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾਹ। ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰ। ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰੀਏ ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਆਭੈ ਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਏ। ਅਮੁੱਲ ਪਾਏ ਮੁੱਲਾ ਸਮਾਹੇ, ਅਮੁੱਲ ਧਰਮ ਮੁੱਲ ਦੀਵਾਨ। ਅਮੁੱਲ ਤੁਲ ਅਮੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਬਖਸ਼ੀਸ ਅਮੁੱਲ ਨੀਸਾਨ। ਅਮੁੱਲ ਕਰਮ ਅਮੁੱਲ ਫੁਰਮਾਨ, ਅਮੁੱਲੋ ਅਮੁੱਲ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਆਖ ਆਖ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਆਖੈ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ। ਆਖੈ ਪੜ੍ਹੇ ਕਰਹਿ ਬਖਿਆਣ, ਆਖੈ ਬਰਮੇ ਆਖੈ ਇੰਦ। ਆਖੈ ਗੋਪੀ ਤੈ ਗੋਵਿੰਦ, ਆਖੈ ਈਸਰ ਆਖੈ ਸਿੱਧ। ਆਖੈ ਕੇਤੇ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧ, ਆਖੈ ਦਾਨਵ ਆਖੈ ਦੇਵ। ਆਖੈ ਸੁਰ ਨਰ ਮੂਨ ਜਨ ਸੇਵ, ਕੇਤੇ ਆਖੈ ਆਖਣ ਪਾਹੇ। ਕੇਤੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਉਠ ਉਠ ਜਾਹੇ, ਏਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਕਰੇਹ। ਤਾਖ ਨ ਸਕੈ ਕੇਈ ਕੇ, ਜੇਵੜ ਭਾਵੈ ਤੇਵੜ ਹੋਏ। ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਆਖੈ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ। ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰ ਗਾਵਾਰਾ ਗਾਵਾਰ। ਸੋ ਦਾਰੂ ਕੇਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕੇਹਾ, ਜਿਤ ਭੈ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ।
ਵਾਜੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਸੰਖਾ ਕੀਤੇ ਬਾਵਨ ਹਾਰੇ ਕੀਤੇ ਰਾਗ ਪਰੀ ਸਿਉ ਕਈਨ ਕੀਤੇ ਗਾਵਨ ਹਾਰੇ ਗਾਵੈ ਤੋਨੋ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ ਗਾਵੈ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣੈ ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ ਗਾਵੈ ਈਸ਼ਰ ਬਰਮਾ ਦੇਵੀ ਸੋਨ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ ਗਾਵੈ ਇੰਦੇ ਦਾਸਨ ਬੈਠੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰ ਨਾਲੇ ਗਾਵੈ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ ਗਾਵਨ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ ਗਾਵਨ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਗਾਵੈ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ ਗਾਵਨ ਪੰਡਿਤ ਪੜਨ ਰਖੀਸਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲੇ ਗਾਵੈ ਮੋਹਣੀਆਂ ਮਨ ਮੋਹਨੇ ਸੁਰਗਾ ਮਛ ਪਿਆਲੇ ਗਾਵਨ ਰਤਨੋ ਪਾਏ ਤੇਰੇ 68 ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ ਗਾਵੈ ਜੋਧ ਮਹਾ ਬਲਸੂਰਾ ਗਾਵੈ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ ਗਾਵੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡਾ ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਧਾਰੇ ਸੇਈ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵੈ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਗਾਵਨ ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤ ਨ ਆਵਨ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ਹੈ ਪੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨ ਜਾਸੀ ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨੋ ਪਾਈ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਜਿਵ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਸਾਹਾ ਪਾਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰੁਜਾਈ ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰਮਪਤ ਝੋਲੀ ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੈ ਵਿਭੂਤ ਚਿੰਤਾ ਕਾਲ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ ਘਟ ਘਟ ਵਾਜੈ ਨਾਦ ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਇ ਕਾਰ ਚਲਾਵ ਹੈ ਲੇਖੇ ਆਵੈ ਭਾਗ ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀ ਬਾਣ ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫੁਰਮਾਨ ਉਹ ਵੇਖੈ ਉਹਨਾਂ ਨਦਰ ਨ ਆਵੈ ਬਹੁਤਾ ਇਹੋ ਵਿਡਾਣ ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ ਜੋ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਬਹੁ ਲੱਖ ਹੋਏ ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਲੱਖ 20 ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਆ ਹੈ ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼ ਇਹ ਤੁਰਾਹੇ ਪਤ ਪਵੜੀਆ ਚੜੀਆ ਹੋਏ ਕੀਸ ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਆਕਾਸ ਕੀ ਕੀਟਾ ਆਈ ਰੀਸ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ ਕੂੜੀ ਕੂੜਾ ਠੀਸ ਆਖਣ ਜੋਰ ਚੁੱਪੈ ਨਹਿ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੇਣ ਨਾ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਹਿ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਰਾਜਮਾਲ ਮਨ ਸੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਜੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਛੁਟੈ ਸੰਸਾਰ ਜਿਸ ਹੱਥ ਜੋਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਕੋਏ ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਏ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ ਤਿਨ ਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ ਤਿਥੈ ਸੋਹਣ ਪੰਜ ਪਰਵਾਨ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੈ ਨੀਸਾਨ ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉਥੈ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਜਾਪੈ ਜਾਏ ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖੋ ਕਰਮ केते पवन पाणी वै संतर केते कान महेश केते बरमे घाट कड़िया है रूप रंग के वेश केतिया कर्म भूमि मेर केते केते तू उपदेश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुध नाथ केते केते देवी वेश केते देव दानव मुन केते केते रतन समुंद केतिया खाणी केतिया बाणी केते पात नरिंद केतिया सुरती सेवक केते नानक अंत न अंत ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮਹਿ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਤਿੱਥੈ ਨਾਦ ਵਿਨੋਦ ਕੋੜ ਆਨੰਦ ਸਰਮਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਤਿੱਥੈ ਘਾੜਤ ਘੜੀਐ ਬਹੁਤ ਅਨੂਪ ਤਾਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਥੀਆਂ ਨਾ ਜਾਹੇ ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਪਿਛੈ ਪਛਤਾਏ ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਾ ਸਦਾ ਕੀ ਸੁਧ ਕਰਮਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ ਤਿੱਥੈ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਿੱਥੈ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਤਿਨ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਤਿੱਥੈ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮੈਂ ਮਮਾਹਿ ਤਾਕੇ ਰੂਪ ਨ ਕਥਨੇ ਜਾਹੇ ਨਾ ਓਹੇ ਮਰਹਿ ਨ ਠਾਗੇ ਜਾਹੇ ਜਿਨ ਕੈ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੇ ਤਿੱਥੈ ਭਗਤ ਵਸੈ ਕੇ ਲੋ ਕਰੈ ਆਨੰਦੋ ਸੱਚਾ ਮਨ ਸੋਏ ਸੱਚ ਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਤਿੱਥੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡ ਜੇ ਕੋ ਕਥੈ ਤਾਂ ਅੰਤ ਨ ਅੰਤ ਤਿੱਥੈ ਲੋ ਅਲੋ ਆਕਾਰ ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਵਕਾਰ ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ ਅਹਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ
पाओ खल्ला अग्न तपताओ, भांडा पाओ अमृतो तित ढाल। घड़िया शब्द सच्ची टकसाल, जिनको नदर कर्म तिनकार। नानक नदरी नदर निहाल। सलोक पवन गुरु पाणी पिता, माता तरत महत। दिवस रात दोए दाई दाया, खेलै सकल जगत। चंगियाइया बुरियाइया, वाचै धर्म हदूर। करमी आपो अपनी, के नेड़े के दूर। जिन्नी नाम ਧਿਆਇਆ, गए मसक्कत काल। नानक ते मुख उजले, केती छुट्टी नाल। जिन्नी नाम ਧਿਆਇਆ, गए मसक्कत काल। नानक ते मुख उजले, केती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं। गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। सोचे सोच न होवई, जे सोची लखवार। चुपै चुप न होवई, जे लाए रहा लिवतार। भुखिया भुख न उतरी, जे बन्ना पुरिया पार। सह सियाण पालख होए, ता इक न चलै नाल। किव सचियारा होइए, किव कूड़े टुटे पाल। हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया हर जी आए, 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 हर जी आए। छड़ सिंहासन हर जी आए, छड़ सिंहासन हर जी आए, हर जी आए, हर जी आए, हर जी आए, हर जी आए। छड़ सिंहासन हर जी आए, छड़ सिंहासन हर जी आए। दूरों देख दंडौत कर, दूरों देख दंडौत कर। छड़ सिंहासन हर जी आए, छड़ सिंहासन हर जी आए, हर जी आए, हर जी आए, हर जी आए, हर जी आए। छड़ सिंहासन हर जी आए, छड़ सिंहासन हर जी आए। विप सुदामा दाल दी, बाल सखाई मित्र सदाए।
ਵਿਪ ਸੁਦਾਮਾ ਦਾਲ ਦੀ ਬਾਲ ਸਖਾਈ ਮਿੱਤਰ ਸਦਾਏ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਬਾਹਮਣੀ ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਦਲ ਦਰ ਗਵਾਏ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਡੰਡੋਤ ਕਰ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਡੰਡੋਤ ਕਰ ਛੱਡ ਸਿੰਘਾਸਣ ਹਰ ਜੀ ਆਏ ਛੱਡ ਸਿੰਘਾਸਣ ਹਰ ਜੀ ਆਏ 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 ਛੱਡ ਸਿੰਘਾਸਣ ਹਰ ਜੀ ਆਏ ਛੱਡ ਸਿੰਘਾਸਣ ਹਰ ਜੀ ਆਏ ਚੱਲਿਆ ਗਣਤਾ ਗੱਠੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਜਾਈਏ ਕੌਣ ਮਿਲਾਏ ਚੱਲਿਆ ਗਣਤਾ ਗੱਠੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਜਾਈਏ ਕੌਣ ਮਿਲਾਏ 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 ਕੌਣ ਮਿਲਾਏ ਚੱਲਿਆ ਗਣਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਜਾਈਏ ਕੌਣ ਮਿਲਾਏ ਪਹੁੰਚਾ ਨਗਰੀ ਦੁਆਰ ਕਾ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰ ਖਲੋਤਾ ਜਾਏ ਪਹੁੰਚਾ ਨਗਰੀ ਦੁਆਰ ਕਾ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰ ਖਲੋਤਾ ਜਾਏ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਡੰਡੋਤ ਕਰ ਛੱਡ ਸਿੰਘਾਸਣ ਹਰ ਜੀ ਆਏ ਛੱਡ ਸਿੰਘਾਸਣ ਹਰ ਜੀ ਆਏ 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 ਛੱਡ ਸਿੰਘਾਸਣ ਹਰ ਜੀ ਆਏ ਛੱਡ ਸਿੰਘਾਸਣ ਹਰ ਜੀ ਆਏ ਛੱਡ ਸਿੰਘਾਸਣ ਹਰ ਜੀ ਆਏ ਹਰ ਜੀ ਆਏ प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक। एक ब्राह्मण और उसकी घरवाली दोनों बैठकर रो रहे हैं। ध्यान देना, एक ब्राह्मण और उसकी घरवाली दोनों बैठकर रो रहे हैं रात के समय। घरवाली कहती है कि ये जो हमारे बच्चे सो रहे हैं, काश हमारे घर में ना पैदा हुए होते, किसी और के घर में पैदा हो गए होते तो उन्हें भूखे नहीं सोना पड़ता,
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो ब्राह्मण भी रो रहा है पर चुप है। घरवाली कहती है हैरानी की बात है, इस गांव में और भी बहुत सारे ब्राह्मण रहते हैं पर हर एक को लोग घर बुलाते हैं, न्योंदा देते हैं, उन्हें दक्षिणा देते हैं, ब्राह्मण वस्तु देते हैं, वस्त्र देते हैं, उनका अच्छा गुजारा हो जाता है। हमें तो कोई बुलाता भी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साथ संगत जी, इस बात पे जरा ध्यान देना। घरवाली क्या कहती है, इस गांव में दूसरे भी ब्राह्मण हैं, उन्हें लोग अपने घर बुलाते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं, सामग्री देते हैं, वस्त्र भी देते हैं। आपको कोई बुलाता तक नहीं। कैसे कर्म है हमारे। अब मार्केट हो, उस मार्केट में बहुत सारी दुकानें हैं पर केवल किसी एक आदमी की ना दुकान चलती हो, उसके भूखे मरने की नौबत आ जाए, बाकी सबकी ग्राहकी हो पर उसके पास कोई आता ही ना हो। इसके पीछे क्या कारण है। प्यार से बोले धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये जो हमारा इतिहास है ना साथ संगत जी, अगर कोई इसे ध्यान से विचारे, गहराई में उतरे, तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। प्यार से बोले धन गुरु नानक। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जिसका सॉल्यूशन नहीं। पर हमें लेना नहीं आता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो धारणा है ना, सतगुरता वंडने ने सबना नो, वो तो सबको बांटता है। तुझे लेना आना आए तो मैं क्या करूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब ऐसे लोग भी हैं जिनके कैंसर जैसे रोग ठीक होते हैं ना, चमत्कार होते हैं, वो भी इंसान ही है ना, बस उन्हें लेने का ढंग आ गया है, हमें नहीं आया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये ब्राह्मण चुप है, घरवाली ताने मार रही है, वो भी रो भी रही है। ये ऐतिहासिक घटना है साथ संगत जी, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं। ये ब्राह्मण कौन? सुदामा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो जब भी मित्रता की बात आती है, दो नाम जरूर आते हैं जो सच्ची मित्रता की बात आ जाए, एक सुदामा और दूसरे श्री कृष्ण जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये जो शब्द हम पढ़ रहे हैं, भाई गुरदास जी ने ये पूरी की पूरी घटना इस शब्द में उच्चारण की है। एक एक पंक्ति में पूरी कहानी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब घरवाली कहती है, आप कहते हो कि कृष्ण जी आपके मित्र हैं, वो तो द्वारका के राजा हैं, उस नगरी के एक छोटे से गांव में हम रहते हैं। मित्र हो राजा भगवान श्री कृष्ण, और दूसरा मित्र खाने को ना मिलता हो, ऐसे कैसे हो सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लगता है भगवान हमें भूल गए, लगता है भगवान तुम्हें भूल चुके। सुदामा कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ध्यान देना। तो उसकी घरवाली कहते हैं, इतनी कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हो, कैसे कह सकते हो कि भगवान हमें नहीं भूले। सुदामा कहने लगा, इसलिए क्योंकि वो मुझे नहीं भूले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कि भक्त और भगवान का प्रेम दो तरफा होता है, एक तरफा नहीं। अगर वो मुझे याद हैं
तो वो भी मुझे याद कर रहे होंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आइए दो पंक्तियां पढ़े, साथ साथ में विचार आगे बढ़ाते हैं। हरि जी आए, हरि जी आए, हरि जी आए, हरि जी आए, छठ सिंहासन हरि जी आए, छठ सिंहासन हरि जी आए। दूरों देख दंडौत कर, दूरों देख दंडौत कर, छठ सिंहासन हरि जी आए, छठ सिंहासन हरि जी आए, 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 छठ सिंहासन हरि जी आए, छठ सिंहासन हरि जी आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सुदामा कहता है नहीं, मेरे भगवान श्री कृष्ण मेरे मित्र मुझे नहीं भूले, क्योंकि मैं उन्हें याद करता हूं। पर घरवाली ने सवाल किया कि आपके मित्र, आपके भगवान कृष्ण जी अगर हमें भूले नहीं तो हम इतने दरिद्र कैसे हैं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बच्चे रो रो कर भूखे सोए हैं, इतने दरिद्रता के कोई हमें अपने घर नहीं बुलाता, कोई दक्षिणा नहीं देता। कैसा कर्म किया है हमने? तब सुदामा के आगे, आंखों के आगे वो घटना आ गई। साथ संगत जी, कौन सी घटना? इस घटना में बहुत बड़ी शिक्षा छिपी है। बचपन का समय है, सुदामा और श्री कृष्ण जी अपने गुरु संदीपन जी के आश्रम में विद्या प्राप्त करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक दिन गुरु माता कहने लगी कि खाना पकाने के लिए लकड़ियां नहीं है। तो कृष्ण जी कहने लगे मैं अभी जाकर जंगल से ले आता हूं। श्री कृष्ण जी चले गए। सुदामा ने देखा कृष्ण जी जा रहे हैं, गुरु माता के पास आए कि मैं भी चला जाऊं साथ में, मैं भी लकड़ियां काटने में मदद कर दूंगा। माता कहने लगी ठीक है चले जाओ। माता को ख्याल आया कि छोटे छोटे बच्चे हैं दोनों, अगर रात हो गई, भूख लग गई तो क्या करेंगे? तो भुजे हुए चने थोड़े से एक पोटली में बांधकर सुदामा को दे दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो कृष्ण जी जा चुके हैं, सुदामा दौड़कर साथ में हो लिया, लकड़ियां काटी, उन्हें बांधा। जैसे ही घर वापस आने लगे, छोटा सा तूफान आ गया, आंधी आ गई और तेज बरसात होने लगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब तेज बरसात होने लगी तो कृष्ण जी और सुदामा ने विचार किया कि नीचे खड़े रहे तो कोई जंगली जानवर भी आ जाएगा, क्यों ना पेड़ पे चढ़ जाएं। जब बरसात बंद हो जाएगी घर में चले जाएंगे। तो एक पेड़ के ऊपर चढ़ गए। एक डाल पर श्री कृष्ण जी बैठे हैं और दूसरी डाल पर सुदामा जी। अंधेरा है पूरा जंगल में। अब सुदामा को लगी भूख, तो याद आया चने हैं मेरे पास, पर विचार करने लगा कि थोड़े से चने हैं, अगर बांट कर खाए न कृष्ण जी का कुछ बनेगा न मेरा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्यों ना मैं अकेले खा लूं। ध्यान देना साथ संगत जी।
क्यों ना मैं अकेले खा लूं। तो उसने छुपके से थोड़े चने निकाले, अपने हाथ में लिए और मुंह में डालकर चबाने लगा। कृष्ण जी को आवाज आई, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने लगे सुदामा क्या खा रहा है, मुझे भी दे, मुझे भी भूख लगी है। सुदामा कहने लगा कुछ भी नहीं खा रहा, मेरे पास जंगल में क्या मिलने वाला है खाने के लिए, कुछ भी नहीं है मेरे पास। कृष्ण जी चुप कर गए। सुदामा ने दूसरी बार चने लिए, अपने मुंह में डाले, आवाज आई चबाने की। कृष्ण जी ने कहा सुदामा अकेले मत खा, बांट के खाते हैं, मुझे भी भूख लगी है, जो भी खा रहे हैं मुझे भी दे दे। सुदामा कहने लगा तुझे मुझ पर विश्वास नहीं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अपने मित्र पर शक करता है, मैं कुछ भी नहीं खा रहा, जंगल में क्या मिलेगा खाने के लिए। कृष्ण जी चुप कर गए। अंतर्जामी है, मुस्कुरा रहे हैं, भी किससे छिपा रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब जब तीसरी बार चने मुंह में डाले, कृष्ण जी कहने लगे सुदामा ये पाप है, अकेले खाना बहुत बड़ा पाप है, चाहे थोड़ा हो चाहे ज्यादा बांट कर खाना चाहिए, जो भी है थोड़ा मुझे भी दे दे। अगर तुझे अकेले खाना ही है तो सच तो बता दे तू खा रहा है, मैं नहीं मांगूंगा। सुदामा कहने लगा मैं कुछ भी नहीं खा रहा, आपको भ्रम हो रहा है। कृष्ण जी कहने लगे चबाने की आवाज आ रही है। सुदामा कहने लगा बारिश में भीगे हुए हैं, ठंड लगी हुई है, दांत से दांत बज रहे हैं, इसलिए आपको भ्रम हो रहा है। प्यार से बोले धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कृष्ण जी के मुख से निकल गया जाओ दलिद्रा, तू दरिद्र ही रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दलिद्र वाला काम कर दिया तूने, अकेले खा रहा है छिपाकर। ये कृष्ण जी की रचना से अचानक श्राप निकल गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। श्राप कोई सोच समझ कर नहीं देता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कोई जानबूझ कर तो देता ही नहीं। निकल गया कृष्ण जी के मुंह से। और सुदामा को ये घटना याद आ गई कि अकेले खाने का गुनाह किया था मैंने, ये उसी की सजा मिल रही है मुझे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर शर्मा कर अपने घरवाली को भी यह घटना नहीं बताता, चुपचाप बैठा है। ध्यान देना साथ संगत, गुरु नानक पातशाह के 3 मूल सिद्धांत हैं। 3 मूल सिद्धांत सारी जन्म साखी पढ़ेंगे तो उनके 3 मूल सिद्धांत हैं गुरु नानक पातशाह के उपदेश, मॉरल जो वो देकर गए हैं। धर्म की कीर्त करना पहला, दूसरा नाम जपना, तीसरा वंड छकना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तीसरा वंड छकना, कहने का भाव बांट कर खाना। 3 मूल सिद्धांतों में से एक ये सिद्धांत के बांट कर खाना, ये बहुत बड़ी बात है, छोटी मोटी बात नहीं। इतनी सारी शिक्षाएं छोड़कर गुरु नानक देव जी ने केवल इसे क्यों चुना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी महाराज के वचन हैं और पूर्ण महापुरुषों के और कई सारे महापुरुषों के ये वचन हैं कि जो लोग बांट कर नहीं खाते, अकेले खाते हैं, उनके घर में दरिद्रता आ जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और जो लोग बांट कर खाते हैं उनके घर से दरिद्रता जन्मों जन्मों की चली जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर अकेले खाने से दरिद्रता आती है तो बांट के खाने से जानी ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब किसी की दुकान ना चलती हो, मार्केट में धंधा ना चलता हो, तो उसे अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि उसका जीवन कैसा है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ मित्र बैठे हैं, खाना खा रहे हैं होटल में, किसी किसी की आदत होती है कि जान छुड़ाऊं बिल ना भरना पड़ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और जिन्हें सत्संगत की प्राप्ति है उनकी कोशिश होती है कि बिल हम भर दें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि महापुरुषों के वचन हैं, खिलाने से और बांटने से कम नहीं होता, बढ़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये हमारी छोटी सोच है। अब कई लोग मुझे अपना दसवन देकर जाते हैं
कई बच्चे काम करते हैं, नौकरी करते हैं, किसी की 25,000 तनख्वाह है तो वो 2,500 दसबंदी कर जाता है। कोई छोटे लोग हैं, कोई 500 रुपया, 700 रुपया, 10,000 रुपया दसबंद देता है ना। जब महापुरुषों की सुमत है दास को, ये बहुत बड़ी छिपा हुआ राज दास बता रहा है आज आपको। कहते थे जब देखो कि सामने वाला गरीब है और सेवा कर रहा है तो उसकी सेवा को लंगर में डालना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्योंकि जब उसकी सेवा लंगर में जाएगी, लोग खाएंगे तो उसकी गरीबी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो जैसे ही मुझे ऐसा कोई दसबंद मिलता है मैं अलग रखवा लेता हूँ। मैंने सेवादारों को समझा के रखा हुआ है, वो दसबंद हम लंगर में डलवाते हैं। मेरा भावना होती है कि गरीबी दूर हो जाए। जो गुरु के चरणों में अमृत वेले आ रहा है उसके घर में गरीबी क्यों रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक एक घटना में एक एक पहलू छिपा है साथ संगत जी। आदि अम्मा के तो वचन थे, बार बार कहते थे अमीर होना है लंगर करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। खर्च करने से, किसी को खिलाने से कम नहीं होता, बढ़ता ही बढ़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आओ दो पंक्तियां पढ़िए। हर जी आए, हर जी आए, हर जी आए, हर जी आए। छठ सिंहासन हर जी आए, छठ सिंहासन हर जी आए। दूरों देख दंडौत कर, दूरों देख दंडौत कर। छठ सिंहासन हर जी आए, छठ सिंहासन हर जी आए, हर जी आए, हर जी आए, हर जी आए, हर जी आए। छठ सिंहासन हर जी आए, छठ सिंहासन हर जी आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब घर वाली पीछे पड़ गई, कहने लगी एक बार मैं कितनी बार कह चुकी हूँ, आज हाथ जोड़ती हूँ कि एक बार अपने मित्र के पास चले जाइए, कृष्ण जी के पास। वो राजा हैं, झोलियां भर देंगे, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। सुदामा कहता है मित्र से जाकर मांगो शर्म आती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मित्रता में सवाल नहीं किया जाता। तो घर वाली कहने लगी ठीक है अब मांगना मत, वो अंतर्जामी है, भगवान है। आपकी हालत देखकर ही समझ जाएंगे कि कितनी दरिद्रता है घर में, कितनी गरीबी है कि पहनने के लिए ठीक से कपड़े भी नहीं है, एक धोती है फटी हुई। जवानी के समय में बुढ़ेपा आ गया है, हड्डियां बाहर निकली हुई हैं, लकड़ी के सहारे आप चलते हो क्योंकि पेट में भोजन नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आपकी हालत देखकर ही वो समझ जाएंगे और वो झोलियां भर देंगे। अब मांगना मत। अब सुदामा ने एक और बहाना बनाया, कहने लगा भी राजा के पास जाना है, मित्र के पास, खाली हाथ कैसे जाऊं, कुछ है नहीं। तो घर वाली उसी वक्त पड़ोसन के पास गई, कहने लगे मेरे पति परमेश्वर श्री कृष्ण जी के दर्शन करने जा रहे हैं, उनसे मिलने जा रहे हैं, हमारे पास लेके जाने के लिए कुछ भी नहीं, चढ़ाने के लिए कुछ दे दो। तो वो चावल निकाल रही थी, चावल, उसने थोड़े चावल ही ऐसे उठाकर उसे दे दिए कि ये ले जाओ, इतने से चावल।
उसकी घरवाली ने पोटली बनाकर दे दिए सुदामा को। अब सुदामा के पास बहाना भी कोई नहीं बचा और भेज दिया, वास्ता दिया अपना अपने बच्चों का और भेज दिया कृष्ण जी के पास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इस शब्द की एक एक पंक्ति है, एक एक पंक्ति। विप सुदामा दाल दी बाल सखाई मित्र सदाए, लागू होई बामणी, पीछे पड़ गई उसकी बामणी उसकी घर वाली। मिली जगदीश दलिदर गवाए, चलिया गिणदा गट्टियां, क्यों कर जाइए कौन मिलाए। चलिया गिणदा गट्टियां, गिनती कहते हैं सोच को। अब सोच सोच कर चल रहा है कि वहां जाऊंगा कैसे, किसको कहूंगा कि मुझे कृष्ण जी से मिला दे। ऐसी हालत में मुझे राजमहल के अंदर जाने कौन देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर चल पड़ा और जाकर राजमहल के बाहर खड़ा हो गया। पाँव में जूती नहीं है, चप्पल नहीं है, खड़ा नहीं है, पाँव में कांटे चुभे हुए हैं, नंगे पाँव गया है, क्योंकि खड़ाओं के लिए धन ही नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब जब राजमहल के बाहर गया, सैनिकों ने देखा तो उन्होंने सोचा कोई भिखारी है, उसे वहां से भगाने लगे। तो कहने लगा नहीं, मैं भिखारी नहीं, मुझे भीख नहीं चाहिए, मैं अपने मित्र से मिलने आया हूं। सैनिकों ने सोचा होगा नौकरों में से कोई रिश्तेदार होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहने लगे बता अपने मित्र का नाम, मैं अंदर जाके पता कराता हूं कौन से नौकर का मित्र है तू। सुदामा कहने लगा मैं नौकर का नहीं, मैं भगवान श्री कृष्ण का मित्र हूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सैनिक आपस में हंसने लगे कि अपनी हालत देख, पाँव में चप्पल नहीं, तन पे कपड़ा नहीं, हड्डियां तेरी बाहर आई हुई हैं, भिखारियों जैसी हालत है, और कहता है भगवान श्री कृष्ण मेरे मित्र हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये जो घटना है ना साथ संगत, ये बहुत बड़ा एक दृष्टांत देकर चले गए श्री कृष्ण जी कि मित्रता कैसे निभाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हम जिसे मित्र कहते हैं हमारे मित्र हैं 99.9% जो लोग हैं वो तो खाने पीने के दोस्त होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कल आपसे जरूरत पूरी ना हो आपको छोड़ देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरबाणी इस बारे में समझाती है, क्या श्रवण कीजिए। निर्धन आदर को न दे, लाख जतन करे ओहु चित न धरे। गरीब आदमी को तो कोई अपने पास नहीं बिठाता, पातशाह समझाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कि कहीं कोई सवाल ना कर दे, कुछ मांग ना ले, दोस्ती करनी तो दूर की बात रही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हर आदमी की कोशिश होती है अपने से अमीर आदमी से मित्रता करने की, कि मुश्किल समय में काम आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और काम केवल और केवल एक मित्र आता है, कौन से? नानक कचड़िया सो तो ढूंढ सज्जन संत पकिया, ओए जीवन दे विछड़े ओए मुया न जाई छो। ये मित्र जिन्हें तू अपना मित्र कहता है ये तो जीते जी छोड़ जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। संतों को अपना मित्र बना ले जो मरने के बाद भी तेरे साथ निभाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिना दिसंदड़िया दुर्मत वंजे, जिना दिसंदड़िया दुर्मत वंजे, मित्र असाडड़े सेई, हों टूंढेंदी जग सबाया जन नानक विरले के।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिन्हें मिलकर, जिनके दर्शन कर कर, जिससे मित्रता कर कर मेरी दुर्मत खत्म हो जाए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पातशाह कहते हैं वो है मेरा सच्चा मित्र। मेरी बुरी मत खत्म हो जाए, मेरी शराब पीने की आदत छूट जाए, मेरी नॉनवेज खाने की आदत छूट जाए, ऐसा अगर कोई मित्र बन जाए, ऐसा है सच्चा मित्र। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिना दिसंदड़िया दुर्मत वंजे, मित्र असाडड़े से ही, पर कहते हैं मैं सारा जग ढूंढ लिया, हों टू डेंडे जग सबाया, जन नानक विरले कोई। सारे जगत को ढूंढ कर देखा, विरले हैं ऐसे लोग जिनसे मित्रता करो तो अवगुण दूर हो जाते हैं। प्यार से बोले धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब सुदामा ने किसी तरह हाथ पैर जोड़कर समझाया कि एक बार जाकर अंदर कह दो कि सुदामा आया है, एक बार। अगर वो ना कह देंगे फिर मैं चला जाऊंगा यहां से। जब सैनिकों ने देखा कि इतनी मिन्नतें कर रहा है, जा ही नहीं रहा, पीछे पड़ा हुआ है, तो एक सैनिक अंदर चला गया। प्यार से बोले धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अंदर जाकर भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं क्या बात है। कहने लगा बाहर कोई आया है, अपने आप को आपका मित्र बताता है, जान ही नहीं छोड़ रहा, लगता है या तो कोई पागल है, क्योंकि हालत उसकी एकदम भिखारियों वाली है, और आप अपने आप को आपका मित्र कहता है। कृष्ण जी कहने लगे भाई उसका होलिया कैसा है। तो वो जैसे जैसे होलिया बयान करता गया, कृष्ण जी उठ खड़े हुए, कहने लगे उसने अपना नाम क्या बताया है, जल्दी बता। तो जैसे ही सैनिक ने कहा कि सुदामा, तो भाई गुरदास जी लिखते हैं कृष्ण जी ने ना तो खड़ाव पहनी, ना ही भागे तो उनके सर से उनका मोर मुकुट भी गिर गया, हाथ से बंसुरी छूट गई, दौड़कर बाहर चले गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और फिर जब दूर से देखा कि सुदामा खड़ा है, तो पहले दंडवत प्रणाम किया दूर से, और फिर भाग कर गए, सुदामा को गले से लगा लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दूरों देख दंडौत कर, छड़ सिंहासन हर जी आए। और पंक्तियां पढ़े। दूरों देख दंडौत कर, दूरों देख दंडौत कर, दूरों देख दंडौत कर, दूरों देख दंडौत कर, छठ सिंहासन हर जी आए, छठ सिंहासन हर जी आए, 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 छठ सिंहासन हर जी आए, छठ सिंहासन हर जी आए, 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 छठ सिंहासन हर जी आए, छठ सिंहासन हर जी आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
धन गुरु नानक धन गुरु नानक। धन गुरु नानक दूरों देख डंडौत कर छड़ सिंहासन हर जी आए। कृष्ण जी भाग कर आए बिना चप्पल बिना मुकुट, डंडौत की प्रदक्षिणा की, गले से लगाया और फिर लाकर सुदामा को राज सिंहासन पर बिठाया। प्यार से बोले धन गुरु नानक। धन गुरु नानक सुदामा के हाथ जुड़े हुए हैं, हाथ खोल ही नहीं रहा, हैरान है। सारे सैनिक हैरान हैं, जिसे वो भिखारी समझ रहे थे वो सच में भगवान श्री कृष्ण का मित्र है। कृष्ण जी ने जल मंगवाया, सुदामा के चरण धो रहे हैं। प्यार से बोले धन गुरु नानक। धन गुरु नानक जब चरण धो रहे हैं, पांव में से कांटे निकाल रहे हैं, कहने लगी सुदामा ऐसी हालत तेरी, लगता है तो चप्पल भी पहनकर नहीं आया। प्यार से बोले धन गुरु नानक। धन गुरु नानक सुदामा मन में सोच रहा है कैसे पहनता है ही नहीं, चुप बैठा है। अब कृष्ण जी और सुदामा जी आपस में बातें कर रहे हैं पुरानी, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पर। चरणोदक ले पैर धोए, सिंहासन ऊपर बैठाए, पूछे कुशल प्यार कर, गुरु सेवा की कथा सुनाए। प्यार से बोले धन गुरु नानक। धन गुरु नानक पुराने बचपन की यादें जो गुरु की सेवा करते थे वो याद की। अब कृष्ण जी ने कहने लगे सुना है तेरी शादी हो गई है। कहने लगा हाँ बच्चे भी हैं। कृष्ण जी कहने लगे भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है। प्यार से बोले धन गुरु नानक। अब सुदामा को याद आया वो चावल बांधे हुए यहाँ पर रखे हुए, हाथ जुड़े हुए, पर राज सिंहासन पर बैठा है महलों में, शर्म आ रही है वो चावल निकाल कर देने के लिए। प्यार से बोले धन गुरु नानक। धन गुरु नानक सुदामा चुप है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सुदामा भाभी ने कुछ ना कुछ तो जरूर दिया होगा मेरे लिए, क्या लेके आया। सुदामा फिर भी चुप, शर्मा रहा है, आंखें नीचे। कृष्ण जी कहने लगे अभी तक तो सुधरा नहीं। प्यार से बोले धन गुरु नानक। धन गुरु नानक पहले भी हमारे हिस्से के चने खा गया था, अब हमारे हिस्से के चावल नहीं दे रहा। प्यार से बोले धन गुरु नानक। धन गुरु नानक सुदामा घबरा गया, चावल निकाल कर कृष्ण जी को दिए कि भाई पहले ही एक शराब लगा हुआ है। प्यार से बोले धन गुरु नानक। धन गुरु नानक बाबा अनंत सिंह जी महाराज वचन किया करते थे जैसे जैसे श्री कृष्ण जी वो चावल चबा रहे हैं उसके जन्मों की गरीबी काट रहे हैं। प्यार से बोले धन गुरु नानक। धन गुरु नानक जैसे जैसे कृष्ण जी चावल चबा रहे हैं उसकी दरिद्रता दूर कर रहे हैं, उसके बंधन काट रहे हैं। प्यार से बोले धन गुरु नानक। धन गुरु नानक धन गुरु नानक। धन गुरु और ये भी गाली मोहन माधव कृष्ण मुरारे जगदीशर हर जियो असुर संगारे। मोहन माधव कृष्ण मुरारे जगदीशर हर जियो असुर संगारे। बिंदरावन मन हर मनो कृष्ण चरात नारे। जाका ठाकुर तुम्ही सर्वदा मोह गवीरा रे। बिंदरावन मन हर मनो कृष्ण चरात नारे। जाका ठाकुर तुम्ही सर्वदा मोह गवीरा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मोहन
संहारे मोहन माधव कृष्ण मुरारे जगदीश सरहार जियो असुर संहारे। अब कृष्ण जी ने सुदामा को अपने पास रखा कई दिन अपने पास रखा। अब सुदामा कहने लगा मुझे आज्ञा दो, मेरे घर में बीवी बच्चे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं। कृष्ण जी कहने लगे थोड़े दिन और रुक जाओ। सुदामा कहने लगा फिर आ जाऊंगा, अब मुझे आज्ञा दो। तो कृष्ण जी कहते हैं चल मैं तुझे बाहर तक छोड़ आता हूं, दूर तक। वो भी लिखा हुआ है, लेके तंदल चब्बे ने विदा करे अग्गे पहुंचाए। हर से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब सुदामा सोच रहा है कि अब मुझे बहुत सारा धन देंगे, इतना प्रेम दिया है, सिंहासन पे बिठाया है, राजाओं के जैसे रखा है, अब ये मेरी झोलियां भर देंगे हीरे जवाहरातों के साथ, जिंदगी भर की गरीबी खत्म हो जाएगी। पर कृष्ण जी ने कुछ भी ना दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब जब कहा दूर तक छोड़ के आता हूं, तो सुदामा मन में सोचता है हो सकता है अकेले में देना चाहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सबके सामने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि दान दिया भी अकेले में जाता है। पर जब कृष्ण जी सुदामा को दूर तक छोड़कर चले आए वापस, सुदामा अपनी तरफ बढ़ गया। रास्ते में सोचता है कमाल है। प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दिया तो कुछ नहीं, जो थोड़े से चावल थे वो भी ले लिए। प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कुछ भी नहीं दिया। उदास मन से जा रहा है कि घर में घर वाली को क्या जवाब दूंगा कि भगवान थे मेरे मित्र और खाली हाथ वापस आ गया। मांगने में शर्मा रहा था, मांगा नहीं कुछ कि अपने आप देंगे, पर नहीं दिया। अब जैसे ही वहां पहुंचा, अपनी गली में देखता है कि सोने के महल बने हुए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हैरान हुआ कि मेरी झोपड़ी टूट गई है, किसी ने घर वालों को भगा दिया वहां से, किसी अमीर आदमी ने अपना महल बना लिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तभी एक सुंदर स्त्री सजी हुई गहनों से बाहर आकर इसके पांव पड़ती है। सुदामा कहता है कौन है आप? कहने लगे मैं आपकी घरवाली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सुदामा देखकर हैरान है, कहने लगे ये सब कैसे? कहने लगे आपके भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने तो ये सब कुछ किया है, मैंने कहा था ना अब जाओ। कहने लगे हम तो रात को सोए थे झोंपड़ी में, जब सुबह उठे तो ये महल बने हुए हैं। प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और महल भी ऐसा कि सारे कमरे, कई कमरे भरे हुए हैं अनाज से, और जितना अनाज निकालो खत्म ही नहीं होता। प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तब सुदामा रो पड़ा। यहां पर एक पंक्ति बड़ी कमाल की है साथ संगत जी। लेके तंदल चब्बे विदा करे अग्गे पहुंचाए, चार पदार्थ सकुच पठाए। सकुच, इसको बड़े ध्यान से समझना। चार पदार्थ कृष्ण जी ने दिए, पर शर्मा के दिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सकुच, सकुच का भाव यहां पर है शर्मा के। अब देने वाला शर्मा रहा है। देखो मित्रता कैसी है कि अगर मित्र को मैं दूंगा तो बड़ा अजीब लगेगा, अगर मैं खुद दूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यहां पर मुझे संत श्याम सिंह जी याद आ गए साथ संगत जी, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी हरमंदिर साहब में 3 पहरे की ड्यूटी करने में, कीर्तन की हाजिरी भरने में सारी जीवन लगा दिया। अमृतसर साहब छोड़कर कभी बाहर नहीं गए कि हरमंदिर साहब में उनकी हाजिरी ना रह जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बहुत कमाई वाले महापुरुष हुए हैं। आज भी श्री हरमंदिर साहब में जो पहली अरदास होती है, जो कड़ा प्रसाद आता है, इनके डेरे से ही आता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इनके बारे में, इनके जीवन की घटना है जब लिखा हुआ है, जो कई लोग बताते हैं, क्योंकि ये अभी अभी की पुरानी घटना नहीं है। कहते हैं
संत श्याम सिंह जी जब गरीबों को लोग बहुत सारा सामान दे जाते थे, कंबल ये वो, महापुरुषों का सामान बहुत दे जाते, तो वो गरीबों में बांट देते थे। पर बांटते कैसे थे? शर्मा कर, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कैसे बांटते थे? सारी दुनिया में आप देख लो, देने वाला खड़ा है, लेने वाला ऐसे झुका होता है। संत श्याम सिंह जी उल्टा करते थे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ऐसे घुटनों पर बैठकर, ऐसे बैठकर, ऐसे आंखें शर्मा कर, आंखों में आंसू भरे होते थे। मैंने जब ये बातें सुनी ना, साथ संगत जी पढ़ी, तो मैं तो एक बार हिल गया। ऐसे देते थे, लेने वाले की आंखों में देखते भी नहीं थे, कहते थे कि लेने वाले को कहीं ऐसा ना लगे कि हम उस पे एहसान कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हम जब किसी को दान देते हैं तो 1000 लोगों को दिखा कर देते हैं कि हमने ये किया है। पंखा भी दान देते हैं, उस पर भी नाम लिखाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जबकि वो चलेगा तो दिखेगा भी नहीं। पता नहीं किसको दिखाना है, पर उस पर भी लिखा है। जब ये गुरुद्वारा बना रहे थे, पुराने पंखे लगे हुए थे, हर पंखे के हर पंख पे 2-2 3-3 नाम लिखे हुए थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हमारी ये हालत है। और संत श्याम सिंह जी ऐसे दे रहे हैं। पूछा, किसी ने सवाल किया, ऐसे क्यों? कहने लगे, देता भगवान है, हम तो माध्यम हैं। जो हमसे ले रहे हैं वो हम पर एहसान कर रहे हैं, हमसे सेवा ले रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हम देकर एहसान नहीं कर रहे हैं, वो हमारे पे तरस कर रहे हैं, हमसे ले रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये मन की अवस्था, यही कृष्ण जी ने किया। 4 पदार्थ सकुच पठाए, संकोच कर शर्मा कर भेजे, पता भी नहीं चले, और उसके जाने तक महल बना दिया, सब कुछ दे दिया, पर एक बार भी मुख से कहा नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह जी महाराज के वचन, अगर अपना दान प्रफुल्लित करना है तो 3 शर्तें लागू हैं। जाके दे, ये मत कहे जिसकी मदद करनी है आ जाना घर पे इस वक्त इतने बजे ले जाना, नहीं, जाकर दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अरे जाकर दे, जिसका जो काम है वो पूरा हो, कोशिश कर, और छिपा कर दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो बीज ऊपर रह जाते हैं उन्हें पशु पक्षी खा जाते हैं, जो बीज धरती में गया उसी का पेड़ बनता है। अगर दिखावा कर दिया, बाबा आनंद सिंह जी महाराज के वचन है, आप दान देकर 3 बार कह दो मैंने दान दिया, 3 बार कह दो ये बिल्डिंग बन रही थी मैंने इसमें सरिया दिया था, ये बिल्डिंग बन रही थी मैंने सरिया दिया था, ये बिल्डिंग बन रही थी मैंने सरिया दिया था, 3 बार कह दो, कहते थे दान का फल खत्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु तो नानक। जिसने जो दिया था, सीमेंट दी, सरिया दिया, ईंट दी, जो भी दिया, उसने लोगों को बताकर अपनी वाहवाही ले ली, उससे जो फल चाहिए था वो मिल गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। छिपा के दे, अगर चाहता है उसका बीज प्रफुल्लित हो तो छिपा कर दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक एक पहलू में एक एक शिक्षा साथ संगत जी कि देना कैसे है, अपनी गरीबी दूर कैसे करनी है। अगर घर में गरीबी है तो खिलाओ, छिपाओ नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे एक ऐसे मित्र हैं जो करोड़पति हैं, पर रात को जब तक 200-250 लोगों को खाना नहीं खिला लेते ना अपने हाथों से, तब तक खुद खाना नहीं खाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो क्या कभी उनके घर में गरीबी आ सकती है? सवाल ही नहीं उठता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आओ शब्द पढ़िए। लेके तंदल चप्पियों विदा करे अगे पहुंचाए, विदा करे अगे पहुंचाए, विदा करे अगे पहुंचाए, विदा करे अगे पहुंचाए। 4 पदार्थ सब कुछ पठाए, 4 पदार्थ
जी आए, हरि जी आए, हरि जी आए, हरि जी आए। छठ सिंहासन हरि जी आए, छठ सिंहासन हरि जी आए, हरि जी आए, हरि जी आए, हरि जी आए, हरि जी आए। छठ सिंहासन हरि जी आए, छठ सिंहासन हरि जी आए, छठ सिंहासन हरि जी आए। दूरों देख दंडौत कर, छठ सिंहासन हरि जी आए। दूरों देख दंडौत कर, छठ सिंहासन हरि जी आए, हरि जी आए, हरि जी आए, हरि जी आए, हरि जी आए। छठ सिंहासन हरि जी आए, छठ सिंहासन हरि जी आए। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपई, हमरी करो हाथ दे रक्षा। पूरन होए चित के इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा। अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट सब है तुम कावो। आप हाथ दे मोए बचावो, सुखी बसे मोरो परवारा। सेवक सिख सब करतारा, मोर अच्छा निज कर दे करिए। सब बैरन को आज संगरिए, पूरन होए हमारी आशा। और भजन के रहे प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई और ना त्याओ। जो पर जाओ सो तुम ते पाओ, सेवक सिख हमारे तारिए। चुन सतर हमारे मारिए, आप हाथ दे मुझे उभरिए। मरण काल का त्रास नुवरिए, हो जो सदा हमारे पछा। तुझ जो करियो रक्षा, राख लियो मोए राखण हारे। साहिब संत साहिब प्यारे, दीन बंधु दुष्टन के हंता। हो पुरी ततर दस कंता, काल पाए ब्रह्मा बप तरा। काल पाए शिव जो अवतारा, काल पाए कर विष्णु प्रगासा। सकल काल का किया तमाशा, जमन काल जोगी शिव कियो। वेद राज ब्रह्मा जो थियो, जमन काल सब लोक सवारा। नमस्कार है ताए हमारा, जमन काल सब जगत बनायो। देव दैत जक्षण उपजायो, आद अंत के अवतारा। सोई गुरु समझो हमारा, नमस्कार तिसही को हमारी। सकल प्रजा जिने आप सवारे, सेवकन को शिव गुण सुख दियो। सकरन को पल मोहब्बत कियो, कट कट के अंतर की जानत। भले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंजर अस्तोला।
सब पर कृपा दृष्ट कर बोला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछानै, कट कट के पट पट की जानै, जब उद करख करा कर तारा, प्रजा तरत तब दे अपारा, जब वह करख करत हूँ कब हूँ, मैं मिलत दे तर सब हूँ, जेते बदन श्रेष्ठ सब धारै, आप आपने बोझ उतार, तुम सब ही ते रहत निरालम, भेद भेद अरे आलम, निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभव, तांका मूढ़ उचारत भेदा, जाको पेव न पापद भेदा, तांको कर पान अनुमानित, महामूढ़ कछ भेद न जान, महादेव को कह तु सदा शिव, निरंकार का चिन्हत न पेव, आप अपनी बुध है जेती, तो पिन पिन तो तेती, तुमरा लखा न जाय पसारा, बुझ सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग पयोराव कई कोपा, अंडज जेरज से तज कीनी, बुझ खान बहु रच देनी, कहूँ कुल राजा हव बैठा, समट प्यो संकर बैठा, सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप से अम्भव, अब रक्षा मेरी तुम करो, असुख संगरो, दुष्ट जिते उठवते उत्पाता, सगल मलेश करो रण काता, जे अस तुझ तव सरणी परै, जिनके दुष्ट दुखत हव मरै, मूर्ख जवन पग परे तिहारे, जिनके तुम संकट सब टारे, जो कल को एक बार ते है, आगे काल निकट ने है, रक्षा होई ताए सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला, कृपा दृष्ट संजाय निहारो, आके तापत नगमो हरो, और तो सिद्ध कर्म सब होई, दुष्ट छा सके न कोई, एक बार जिन तुम्हें संभारा, पास देताए जिन नर नाम तिहारो कहा, दुष्ट लोक ते रहा, खड़ग केत में शरण तिहारी, आप हाथ दे ले उबारी, सर्व डोर मोह सहाय, दुष्ट लोक ते ले बचाई, खड़ग केत में शरण तिहारी, आप हाथ दे ले उबारी, सर्व डोर मोह सहाय, दुष्ट दुख ते ले राम कली महला तीजा आनंद क्यों कार सतगुर प्रसाद, आनंद पिया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुरु का पाया सहज से की मन वजिया वाधाया, राग रतन परवार परियां शब्द गावण आइया, आनंद होवा सतगुरु मैं पाया, मन मेरा तू सदा रो हर नाल रो तू मन मेरे दुख सब विसारना, अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवारना, साचे साहिबा क्या नहीं करते रे, करता तेरे सब कुछ है जिसने सो पावे, तेरी नाम मन सावे, नाम जिनके मन वस्या वाजे शब्द मेरे, कहे नानक सच्चे सैल क्या नहीं घर तेरे, साचा नाम मेरा आधारो, साचा नाम मेरा आधार, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया, करसान सुख मन आए वस्या, जिन इच्छा सब पूजाइया, साचा नाम मेरा आधारो, साचा नाम मेरा वाजे पंज शब्द घर सभागे, घर सभागे शब्द वाजे, कला जे करतारियां, पंज दूत वस कीते काल कंटक मारिया, पाया तू जिनको
से नाम हटे लागे, कहे नानक दस को आदित करे नर वाजे। मन सुनो बड़ भागी हो सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल सूरे। संताप उतरे सुनी सच्ची बानी, संत साधन पाए सबसे पूरे गुटे जानी। सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुरु रया भरपूरे, बिन वंद नानक गुरु चरण लागे वाजे अनहद तुरे सलोक पवन गुरु पाणी पिता। माता तक महात जिसराग गाई गाया खेलिया सगल जगत। चंगियाइयां बुरियाइयां वाचे धर्म हजूर, करमी आपो अपने जिन्नी नाम ध्याया, जिन्नी नाम ध्याया, जिन्नी नाम ध्याया, जिन्नी नाम ध्याया। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। ओ वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। जिन्नी नाम ध्याया, जिन्नी नाम ध्याया, जिन्नी नाम ध्याया, जिन्नी नाम ध्याया, जिन्नी नाम ध्याया। गए मशक्कत काल, नानक ते मुख छोटे नाल। बोलो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा
नमः शिवाय। गुरुजी सदा शिवजी सदा सहाय। ॐ 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 नमः शिवाय। गुरुजी सदा जय गुरु जी की।